Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Success Hub. I'm excited to bring you the solution to the CSIR NET June 2024 Mathematics Part C paper today. We will dive deep into these challenging problems together, and by the end you will not only understand the solutions but also gain the confidence to tackle similar questions in your exam. If you find this helpful, do not forget to subscribe my channel for more such in-depth analysis and strategies to ace your exams. So let us get started. Now, consider question ID 704072. Consider R and Q of X as a vector space over Q. Okay. यहाँ पर which of the following statement are true? First, there exists an injective Q linear transformation T from R to Q of X. Injective, that means 1 1. So what is R? R is here. ये जो R is a vector space over Q है यहाँ पर. And what is R over Q? This is a vector space over Q and it is uncountable. It is uncountably infinite dimensional. And what is here? Q of X. Q of X. Q of X is countably. This is countable infinite dimensional. What is Q of X? It is simply this is a space of polynomials with rational coefficients. With rational coefficients. Now a linear transformation हम जानते हैं a linear transformation between vector spaces can be injective when only if the dimension of domain is less or equal to dimension of codomain. So what is the dimension of here? R का dimension ये तो uncountable है. यहाँ पर क्या है? Q of X. This is countable. That means ये जो R है R और Q ये तो greater than है, इसका dimension तो बड़ा है इससे. That means क्या exist हो जाएगा? 1 1 नहीं हो जाएगा exist. That means this is follows option. There exists an injective Q linear transformation T from Q of X to R. Obviously हो जाएगा because Q of X इसका dimension तो इससे छोटा है. So that means there exists यहाँ पर linear transformation can be injective if dimension of domain is less or equal to dimension of codomain. Here it is satisfied. That means this is option. This is true. Now the Q vector space Q of X and R are isomorphic. When vector spaces are isomorphic, कब होते हैं? For two vector spaces we know that for two vector spaces to be isomorphic, if they have same dimension. Now what is the dimension of Q of X and what is the dimension of R? क्या सेम है? ये तो काउंटेबल है, ये तो काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये तो अनकाउंटेबल है, इसका डायमेंशन तो कंटिन्यूम हो जाएगा. एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका ये तो काउंटेबल सेट है, ये तो काउंटेबल इनफाइनाइट है. दैट मीन्स इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन तो सेम नहीं है. ये क्या बोल रहा है? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. अगेन दिस इज अ फॉलोज ऑप्शन. Now there do not exist, यहाँ पर do not लिखा है, do not exist a non-zero Q linear transformation from T from R to Q of X. Now अभी हमने बोला है कि यहाँ पर exist तो नहीं हो जाएगा, क्या 1 linear transformation exist नहीं हो जाएगा from Q to R of X. ये हमने ऊपर डिस्कस किया है. बट यहाँ पर इंजेक्टिव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिंपली किसकी बात हो रही है? सिंपली ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो सकता है. आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लेंगे आप, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक तो यहाँ पर टी ऑफ से R1 अगर मैं लेता हूँ R1 प्लस R2, ये किसके बराबर आना चाहिए? दिस इज सिंपली टी ऑफ R1 प्लस टी ऑफ R2. एंड दूसरा जो है वो क्या मिलेगा? टी ऑफ से QR अगर मैं लेता हूँ, ये किसके बराबर मिलेगा? दिस इज Q टी ऑफ R. एंड ये जो Q है ये कहाँ बिलोंग करता है? दिस इज स्केलर. तो Q जो है ये
क्यू में बिलोंग करेगा एंड आर जो है ये आर में बिलोंग करेगा। ये बोल रहा है कि क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट हो सकता है बट वन वन एग्जिस्ट नहीं होगा, वन वन एग्जिस्ट बिकॉज इसका डायमेंशन तो इससे बड़ा है। बट सिंपली अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, आप कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने टी ऑफ आर ले लिया है से टी फ्रॉम आर टू क्यू ऑफ एक्स, लेट यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय से टी ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स, है ना। इस क्यू ऑफ एक्स में इस टाइप का एलिमेंट होता है, एक पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल है विद रैशनल कोएफिशिएंट, तो आर बिलोंग्स टू आर कहाँ बिलोंग करेगा, क्यू में बिलोंग करेगा बिकॉज रैशनल है, एंड यहाँ पर टी ऑफ आर। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज टी ऑफ आर वन प्लस आर टू, व्हाट इज टी ऑफ आर वन प्लस आर टू किसके बराबर मिलेगा, दिस इज सिंपली आर वन प्लस आर टू इंटू एक्स, so this is equal to r1x plus r2x and this is t of r1 plus t of r2 satisfy हो रहा है। Similarly अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ t of q dot r, this is again q dot r x, so this is equal to q dot rx and this is simply q t of r, that means ये भी satisfy हो रहा है। so linear transformation एग्जिस्ट हो जाएगा बट फ्रॉम आर टू क्यू, ये क्या बोल रहा है कि देयर डू नॉट एग्जिस्ट, तो अगेन ये क्या है, फॉल्स ऑप्शन है, दैट मीन्स ओनली सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि समेशन ए एन बी है कन्वर्जेंट सीरीज, तो अगर हम देखेंगे समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, तो बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर सीरीज के लिए क्या होता है, ए एन tends to 0 as n tends to infinity, this is the necessary condition। अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो ए एन टर्म है वो कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा as n tends to infinity। नाउ चूंकि ए एन एंड बी एन जो है ये डिफाइन किस पर हो रहा है, ए एन और ए एन पे ही हो रहा है, फॉर ए एन इज ग्रेटर देन 0 ओनली, फर्क क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लेस देन 0। सो इन शॉर्ट ए एन एंड बी एन डिफाइन होता है इसी ए एन पे, तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है कि ए एन टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, चूंकि कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, बी एन भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, दैट मीन्स दिस इज ए नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे, ये बोल रहा है कि समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो अगर ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगेन अगर ए एन समेशन ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज अगेन ए एन जो है यहाँ पर ये ए एन जो है ये किस पर डिफाइन होता है, स्मॉल ये ए इस ए एन पे डिफाइन होता है, एंड बी एन ये भी किस पे होता है डिफाइन, ए एन, क्योंकि समेशन ए एन एंड समेशन यहाँ पर ए एन ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सो दैट मीन्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिंपली क्या होता है कि समेशन ए एन अगर इम्प्लाई क्या करेगा यहाँ पर, समेशन मॉड ऑफ ए एन भी क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, समेशन मॉड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होना चाहिए। सो दैट मीन चूंकि ए एन ये जो ए एन एंड बी एन है ये क्या है, ये तो आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपली स्प्लिटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स ऑफ ए एन। ओके, सो दैट मीन देयर इनका जो एब्सोल्यूट सम भी हो जाएगा ए एन एंड बी एन का, ये क्या हो जाएगा, ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, दैट मीन दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अब बात कर रहे हैं कि बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। नाउ अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि समेशन ए एन के बारे में यहाँ पर नहीं बोला गया है, बोल रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि समेशन ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, तो अगर मैंने समेशन ए एन कन्वर्जेंट है, सो लेट ए एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल -1 पावर n plus 1 upon n, this is a n। now what about summation a n, this is summation a n, तो ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्यों कन्वर्जेंट हो जाएगा, बाय लिबनीज टेस्ट, n tends to ये n tends to 0 as n tends to infinity, a n tends to 0 as n tends to infinity, so that means ये क्या मिलेगा, ये तो कन्वर्जेंट मिलेगा, this is satisfy। ओके, नाउ ये क्या बोल रहा है कि समेशन ए एन अगर कन्वर्जेंट सीरीज है
उसके बाद डिफाइन किया है इसने। नाउ ये बोल रहा है कि बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। नाउ व्हाट इज द ए एन, क्योंकि ए एन यहाँ पर क्या है, अगर मैंने यहाँ पर ए एन ले लिया है, ए एन क्या मिलेगा, क्योंकि ए एन में तो ऑलरेडी यहाँ पर कौन से टर्म्स आएंगे, पॉजिटिव वाले टर्म्स आएंगे। दैट मीन्स अगर मैंने एन का वैल्यू 1 रखा है तो पॉजिटिव आएगा, अगर मैंने एन का वैल्यू 3 रखा है पॉजिटिव आएगा, एन का वैल्यू सिमिलरली 5 तो ऑड, ऑड पे क्या आएगा, सो दैट मीन्स दिस इज सिंपली 1 अपॉन एन व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड एंड 0 कब मिलेगा, एन इज इवन, दिस इज ए एन। नाउ सिमिलरली अगर हम बी एन यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बी एन क्या मिलेगा, ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर और टर्म्स रखेंगे, यहाँ पर अगर इवन टर्म्स रखेंगे से 3 फिर 5, तो ये क्या मिलेगा, सॉरी इवन टर्म्स अगर रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या मिलेगा, 2 + 1 दैट इज 3, यहाँ पर ये नेगेटिव मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज -1 अपॉन एन when n is even, अगर मैंने n even रखा है तो ये -1/n मिलेगा, and 0 when n is odd. So these are the two term, this is an and this is bn. Now ये क्या बोल रहा है कि summation an and summation bn are, सॉरी यहाँ पर summation an and summation bn are convergent। क्या summation an convergent है, ये तो convergent नहीं है, is not convergent by p test, again summation bn is not convergent, that means this option is false. Now summation an is not absolutely convergent, अगर summation an absolutely convergent नहीं है, and यहाँ पर क्या बोल रहा है कि summation bn is not, both summation an and bn are divergent, obviously अगर ये absolutely convergent नहीं है, that means ये क्या है, ये तो फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या है, समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बोथ क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड। नाउ नेक्स्ट हियर क्यू ऑफ x1 x2 एंड q2 ऑफ y1 y2, ये क्या है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सच दैट देयर एग्जिस्ट्स u1 u2 एंड v1 v2 बिलोंग्स टू R2 such that q1 of u1 u2 is equal to 1 and this। now यहाँ पर सिंपली क्या बोला गया है कि क्या ये q जो है क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा इसमें, देखो q इसने यहाँ पर डिफाइन किया है, q यहाँ पर डिफाइन किया गया है इस तरह और इस तरह, दिस इज सिंपली व्हाट इज q, यहाँ पर जो ये q जो है दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन x1 x2 y1 एंड y2, चूँकि q1 क्या है, Q1 ऑलरेडी इसने बोला है Q1 भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, Q2 भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एंड हम तो जानते हैं ओब्वियसली अगर हम डिफरेंस इनका निकालेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने Q1 ले लिया है, दिस इज से यहाँ पर Q1 ऑफ x1 x2 है, दिस इज Q1 ऑफ x1 x2, लेट इट बी दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, है ना, x1 स्क्वायर ये मैंने ले लिया है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दिस इज सिंपली क्या होता है, होमोजेनियस पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, एक होमोजेनियस पॉलिनोमियल होता है, डिग्री 2 इन इट इज वेरिएबल। सो Q2 ऑफ y1 y2 अगर मैं लेता हूँ, दिस इज सिंपली से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ना अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि difference of two quadratic form is again a quadratic form. Now there exists t1 t2 belongs to R square such that q1 quadratic form of t1 t2 किसके बराबर मिलेगा, 5 के बराबर मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो अगर हम सिंपली यहाँ पर q1 एंड q2 की बात कर रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर t1 ले लिया है, से मैंने t1 ले लिया है, t1 अगर मैंने √5 ले लिया है, एंड लेट t2 इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज q1 ऑफ t1 इज हियर, बिकॉज यहाँ पर क्या बोल रहा है q1 ऑफ t1 t2, सो q1 ऑफ √5 एंड 0, ये किसके बराबर मिलेगा, क्योंकि q1 डिफाइन किया गया है, यहाँ पर मैंने बोला है q1 q2 क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, होमोजेनियस है, डिग्री 2 है, x1 एंड x2, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, दिस इज x1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज √5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज 5,
ये क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट इज T1 T2, हाँ एग्जिस्ट हो रहा है, T1 T2 एग्जिस्ट हो रहा है और स्क्वायर में सच दैट Q1 का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो 5 के बराबर आएगा। दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट S1 S2, डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट Q2 ऑफ S1 S2 इज -5। नाउ अगेन अगर हम बात कर लेंगे Q2 ऑफ से S1 S2, this is simply what, S1 square minus S2 square। ओके ना, अगर मैंने यहाँ पर S1 चूज किया है 0 एंड अगर मैंने S2 चूज किया है √5, तो क्या मिलेगा, व्हाट इज Q2 ऑफ 0 √5, दिस इज सिंपली 0 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, सो दिस इज 0 -5, दिस इज -5। तो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है। ये क्या बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो फॉल्स होगा। गिवन अल्फा बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट इज ए वेक्टर W ऑफ बिलोंग्स टू आर पावर 4 सच दैट Q ऑफ ओमेगा, Q ऑफ ओमेगा किसके बराबर मिलेगा, अल्फा के बराबर मिलेगा। ना इसके बारे में क्या है, क्या ये हो जाएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट बोला है कि अगर आप कोई भी, चूंकि यहाँ पर ओमेगा R पावर 4 है, तो अगर हम लेंगे यहाँ पर Q ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स दिस इज सिंपली x1 x2 x1 x2 एंड y1 y2, हम लेंगे y1 y2, दिस ये किसके बराबर मिलेगा, दिस इज सिंपली x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा मैंने ले लिया है, ये क्या बोल रहा है, Q ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू से, लेट अल्फा इज इक्वल टू 5। नाउ चूज, अगर मैं यहाँ पर x1 चूज करूँगा से √5, मैंने x2 को चूज किया है फॉर एग्जाम्पल 0, मैंने y1 एंड y2 को भी चूज किया है 0, that means what is Q of omega, Q of omega is here, this is √5 0 0 and 0, ये क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर दैट मीन्स √5 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज अगेन a 5। सो दैट मीन्स यहाँ पर Q ऑफ ओमेगा जो है दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू 5, यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट कि Q ऑफ ओमेगा जो है वो अल्फा के बराबर मिलेगा। आप कोई भी ले लीजिए, अगर आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है से अल्फा मैंने ले लिया है -5, तो उस टाइम हम चूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल x1 इज इक्वल टू 0 चूज़ कर लेंगे, x2 भी 0 चूज़ कर लेंगे, y1 को हम चूज़ कर लेंगे √5 एंड y2 को हम चूज़ किया 0, तो अगेन यहाँ पर भी क्या मिलेगा, अगर हमने Q ऑफ ओमेगा ले लिया, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, दिस इज अगेन 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर एंड प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज अगेन -5। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, दिस इज अगेन अल्फा, क्योंकि अल्फा मैंने चूज किया -5, सो देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, तो ये भी ट्रू है। ओके नाउ नेक्स्ट, let f be an entire function such that for every integer k greater or equal to 1 there is an infinite set xk such that f of z is equal to 1 upon k। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी एंटायर फंक्शन लेंगे सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर f ऑफ z ले लिया है एक एंटायर फंक्शन, लेट इट बी e पावर z, देन ये क्या बोल रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई k, सो f of z is equal to 1 by k, that means this is equal to 1 by k। now अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली z is equal to ln of 1 by k, ओके एंड प्लस 2n pi iota for all n belongs to what, n belongs to z।
ये ln ऑफ 1 बाई के है, दिस इज अ सिंपली प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द लॉगरिथम। नाउ अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे एक्स के क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनफाइनाइट सेट है, तो एक्स के, व्हाट इज एक्स के इज सिंपली ln ऑफ 1 बाई के प्लस 2 पाई आयोटा एन, सच दैट एन जो है ये कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करेगा। तो ये तो एक इन्फाइनाइट सेट आ रहा है, एंटायर भी है, इन्फाइनाइट, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ अब क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट्स, पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट्स एन इन्फाइनाइट सेट सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, क्या ये 0 के बराबर मिलेगा। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट इज ए नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, and the set xk is unbounded for each k greater or equal to 1। देखो अगर हम यहाँ पर xk देखेंगे, क्या ये अनबाउंडेड है, क्योंकि ये एक इन्फाइनाइट है। f ऑफ z किसके बराबर है, e पावर z, एंड e पावर z अगर मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल 0, सो दैट मीन्स इसके पास तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज e की पावर z तो के भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये जो एक्स के है ये क्या है, अगर हम बात कर लेंगे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि एक्स के इज बाउंडेड, अगर एक्स के क्या है, अगर मैंने माना है कि एक्स के बाउंडेड है, सो एफ क्या मिलेगा, एफ तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एफ इज कॉन्स्टेंट। अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो दैट मीन्स ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों कंट्राडिक्शन हो जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड तो 1 बाई के है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स के है ये क्या मिलेगा, ये एक अनबाउंड, मैंने क्या बोला था, एक्स के इज बाउंडेड, बट अगर एक्स के बाउंड है तो एफ क्या मिलेगा, बाय लेवल्यूज थ्योरम में क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा, तो एक्स के अनबाउंडेड हो जाएगा, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आएगा। सो दैट मीन्स एक्स के क्या मिलेगा, दिस इज एन अनबाउंडेड, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अगर हम 4 की बात कर लेंगे, देयर एग्जिस्ट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस सच दैट, तो बाउंडेड सीक्वेंस बोल रहा है कि अगर हम बात कर लेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बाउंडेड सीक्वेंस मैंने ले लिया है से जेड के वायर के ग्रेटर और इक्वल टू 1। नाउ हम जानते हैं बाय बोल्जोनोव-वाइटरस थ्योरम अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ in C has a convergent subsequence, so let Z kj be it is convergent subsequence। okay, now what is f of Z kj, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1 अपॉन kj, and 1 by kj it tends to 0, 1 by kj tends to 0 as j tends to infinity। so that means इसका मतलब क्या मिलेगा, ये जो f of z है ये क्या मिलेगा, ये तो 0 के बराबर मिलेगा, implies that f has a 0, f has a, ठीक है, अगर ये बाउंडेड देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड सीक्वेंस यस सच दैट फॉर ईच के ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो z के हैं ये कहाँ बिलोंग करेगा, x के में बिलोंग करेगा, then f has a 0, that means this is again a true statement, this is again a, now there exists a non-empty closed set such that f of z is equal to 0। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात कर लेंगे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जिस्टेंस बोला है कि नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। देयर exists an infinite set, दिस इज अगेन अ फॉल्स, एंड दिस इज, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 1 अगर आप देखिए ये क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने f ऑफ z क्या ले लिया है, f ऑफ z मैंने ले लिया है e पावर z, तो हम जानते हैं ये जो e पावर z है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर इक्वल टू 0 for any z belongs to C, that means there is no value of z, there is
नो वैल्यू ऑफ z, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ z सच दैट, ये जो फॉर विच ई पावर z इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा जहां पर एफ ऑफ z इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, दैट इज व्हाई दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट, चूंकि एफ ऑफ z इज इक्वल टू ई पावर z, एफ ऑफ z इज इक्वल टू f of z is equal to e power z has no zero in the complex plane. Okay, so there cannot be any non-empty set also, यहाँ पर तो non-empty भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर तो कोई भी इसके पास जीरो ही नहीं मिलेगा ना इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, so that means there cannot be a non-empty set x या closed otherwise such that f of z जीरो मिलेगा, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट नहीं होगा, दैट मीन्स दिस अगेन है, ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट हो जाएगा, दैट इज अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड वन वन फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है एंड वन वन भी है। ना अगर हम which of the following statement are necessarily true? Okay, now first option is f is strictly increasing, अगर कंटिन्यूअस भी है वन वन भी है, वन वन मीन्स दिस इंजेक्टिव, तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज कंटिन्यूअस, एक सिंपल लीनियर फंक्शन है ये, क्या ये इंजेक्टिव है, एफ ऑफ एक्स वन अगर एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है, इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, implies that x1 is equal to x2, so this is injective, this is 1 1। क्या ये फंक्शन जो है क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्यों डिक्रीजिंग है, बिकॉज अगर हम लेंगे x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 किसके बराबर मिलेगा, दिस इज माइनस x1 एंड विच इज ग्रेटर देन माइनस x2 एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। सो ये तो ये क्या मिलेगा, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा, ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिमिलरली अगर हम f ऑफ x लेंगे, फॉर एग्जांपल x मैंने ले लिया है, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, ये जो फंक्शन है अगेन ये क्या है, कंटिन्यूअस है एंड दिस इज अगेन अ वन वन फंक्शन, सो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि x1 इज लेस देन x2, देन व्हाट इज f ऑफ x1, f ऑफ x1 इज x1 एंड x1 इज लेस देन x2 विच इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो x क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगेन दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन। नाउ फिर इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड फोर्थ क्या बोल रहा है कि f इज ऑन टू, क्या ऑन टू है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल f ऑफ x ले लिया है, से दिस इज e पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये मैंने ले लिया है, फॉर ऑल x बिलोंग, दैट मीन्स f कहाँ से है, r टू r है, कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है, e पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। नाउ क्या ये कंटिन्यूअस है, ओब्वियसली कंटिन्यूअस है, क्या ये वन वन है, e पावर x1 इज इक्वल टू e पावर x2 इम्प्लाइज दैट, लॉन जब अप्लाई कर लेंगे तो x1 x2 के बराबर मिलेगा, दिस इज ए वन वन फंक्शन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ भी कर लेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, चूँकि एट मोस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ को, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, वन वन मिलेगा बाई ग्राफिकली अगर देखेंगे हम। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू, क्या ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज अगर हम इसका रेंज देखेंगे, इसका जो रेंज सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो तो ज़ीरो और इन्फिनिटी आएगा, बट ज़ीरो ओपन है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह ग्राफ हो रहा है ई पावर एक्स का, तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर ले लिया है ई पावर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका तो कोई इमेज नहीं मिलेगा ना, ओके, सो दैट इज़ वाई ये क्या मिलेगा,
देयर इज नो एक्स, यहाँ पर e की पावर x तो 0 के बराबर नहीं मिलेगा, देयर इज नो एक्स, देयर इज नो एक्स सच दैट e पावर x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या e पावर x मिलेगा -1, है ना। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये ऑन टू नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑन टू नहीं हो जाएगा, फ्रॉम आर टू आर की बात कर रहा है, क्योंकि आर टू आर है ना। यहाँ पर ऑन टू कब होता है, अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेंज इसका 0 इन्फिनिटी आ रहा है, इसका कोडोमेन आर आ रहा है, तो आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट ऑन टू, तो ऑन टू तो नहीं हो जाएगा। या अगर हम इसको इस तरह भी देखेंगे, इस तरह होता है ये ग्राफ इसका, ऑन टू के लिए क्या हम देखते हैं ग्राफिकली, एटलीस्ट अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एटलीस्ट एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करना चाहिए इसको, इस ग्राफ को। अगर हमने यहाँ से लाइन किया ड्रा किया है तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, सो ये ऑन टू तो हो जाएगा, बट कहाँ पर ऑन टू हो जाएगा, आर से आर पॉजिटिव अगर मैं लेता हूँ, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर टू आर, दिस इज नॉट ऑन टू, सो दैट मीन्स f is either strictly increasing, remaining, that is this is a true option. Now why this is true option, because अगर f continuous भी है और injective भी होता है, अगर f continuous भी है, f is continuous and injective, that means it cannot have a local maximum or minimum, इसके पास तो मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं हो जाएगा, कब, अगर ये कंटिन्यूअस भी है और इंजेक्टिव भी है। मिनिमम और मैक्सिमम कब मिलता है, जब हमारे ग्राफ इस तरह कुछ जंप होगा या हो जाएगा, या कभी डाउन हो जाएगा कभी अप हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका क्या है, मैक्सिमम ना। अगर ये ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये कंटिन्यूअस भी है और इंजेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास मैक्सिमम है या मिनिमम है, सो इधर या इंक्रीज हो जाएगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, पहले इंक्रीज होना पड़ेगा इसको, देन डिक्रीज हो जाएगा, तभी तो हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम मिलेगा। बट ये क्या करेगा, ये तो वायलेट करेगा इंजेक्टिव को, क्योंकि इंजेक्टिव फिर नहीं मिलेगा, अगर कभी इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंजेक्टिव नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई एक जो कंटिन्यूअस एंड इंजेक्टिव फंक्शन है, कंटिन्यूअस एंड इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड ऑन द एंटायर रियल लाइन मस्ट बी either strictly increasing or strictly decreasing. That is what this option is true, necessarily true. Now next, एक यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y dash x is equal to sin yx upon 1 plus y 4x and x belongs to r. Now ये क्या बोल रहा है कि दिस इज अगेन बाय ये पिकार्ड थ्योरम का जो ये उसी पे बेस्ड है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो फैक्टर है 1 अपॉन 1 प्लस y पावर 4 ऑफ x, ये अगर हम देखेंगे, क्योंकि ये जो 1 प्लस y पावर 4 ऑफ x जो है, ये क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये तो कंटिन्यूअस तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन वाई एक्स है, ये क्या है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ऑसिलेट हो रहा है -1 to 1, एंड ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। क्या ये लिपलीज फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसका, अगर हम यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, साइन, दिस इज वाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई पावर 4x। सो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे व्हाट इज पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1 प्लस वाई पावर 4x इसका होल स्क्वायर, एंड इसको मैंने ऐसे ही रखा है y पावर 4x साइन वाई एक्स, दिस इज कॉस वाई एक्स एंड माइनस साइन वाई एक्स, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज 4y क्यूब। सो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पर लिपलीज कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये एक बाउंडेड आ रहा है ना, जब भी हमारे पास पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई लेसर इक्वल टू के मिलेगा, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, ये तो लिपलीज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज पॉजिटिव एंड बाउंडेड, ये कॉस एंड साइन ये भी बाउंडेड है, तो ये क्या मिलेगा, सेटिस्फाई करेगा लिपलीज कंडीशन एंड कंटिन्यूअस भी है। सो दैट मीन्स
बाय पिकार्डिस थ्योरम क्या बोलेगा यहाँ पर, देयर इज ए पॉजिटिव वाई जीरो सच दैट द सोल्यूशन इज अनबाउंडेड। क्या अनबाउंडेड है? यहाँ पर तो सोल्यूशन बाउंडेड आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव वाई जीरो एग्जिस्ट मिलेगा सच दैट द सोल्यूशन इज अनबाउंडेड। तो चूंकि यहाँ पर ये जो वाई डैश एक्स है ये क्या है, ये तो बाउंडेड है, 1/1 + y4x ये तो बाउंडेड है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि अनबाउंडेड मिलेगा, बाय पिकार्डिस थ्योरम तो अनबाउंडेड नहीं मिलेगा, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देयर इज ए नेगेटिव वाई जीरो साइज दैट द सोल्यूशन इज बाउंडेड, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, फॉर ऑल, ये तो फॉर ऑल वाई के लिए क्या है, ये तो फॉर ऑल वाई के लिए बाउंडेड है। तो अगर नेगेटिव भी मिलेगा तब भी ये क्या देगा, बाउंडेड सोल्यूशन देगा, दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। For every y0 belongs to R, every solution of the initial value problem is bounded. Obviously, for all मैंने बोला है for all y0 belongs to R, ये bounded मिलेगा. That means by Picard's theorem में क्या देगा, ये एक unique solution देगा and this is a bounded obviously. Now fourth option क्या बोल रहा है कि for every y0 belongs to R there is a solution to the initial value problem. हाँ solution तो मिलेगा because by Picard's थ्योरम ये तो गारंटी देता है कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ये जो यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है एंड सेटिस्फाई क्या करता है, लिपलीज कंडीशन। जब लिपलीज कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज दिस इज ए स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दिस इज अबाउट व्हाट, Green's function. Now consider the boundary value problem this and g of x zeta। अगर हम देखेंगे now हम जानते हैं यहाँ पर ये जो Green's function होता है ये continuous होता है। g is, अगर हम इसकी जो प्रॉपर्टी है Green's function, this is continuous at x is equal to zeta, and ये जो partial g by partial x होता है this is continuous for all except at x is equal to zeta. So x is equal to zeta पे जो ये होता है partial g by partial x, ये वहाँ पे discontinuous होता है only at x is equal to zeta. Okay, now अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या बोल रहा है, e power x g of x zeta is equal to this. Now अगर हम कंडीशन यहाँ पर रखेंगे y0 is equal to 0, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज ओब्वियसली ये 0 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू e power x 3x, दिस इज 1 एंड प्लस b। ओके, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज c e power 2 zeta, बिकॉज मैंने यहाँ पर कंडीशन कौन सा रखा है, y0 is equal to 0, इसमें रखना है सिंपली। सो वी गेट प्लस d e power 3 zeta। नाउ इम्प्लाई यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ओब्वियसली b का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है b का वैल्यू -1 है। नाउ अगेन अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अगर हमने ये कंडीशन रखा है y ln 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज e पावर, दिस इज 3 ln 2 प्लस दिस इज b e पावर 2 ln 2, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, c e पावर 2 zeta एंड प्लस d e पावर 3 zeta। ये किसके बराबर मिलेगा, अगेन 0 के बराबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x के बदले क्या देना है, ln 2 देना है, एंड ये जो बाकी हैं g के, ये क्या मिलेगा, g ऑफ 0, g ऑफ ln 2 zeta, ये क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, दैट इज व्हाई दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जब e एंड ln कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, 2 पावर 3, तो क्या मिलेगा 8 प्लस ये मिलेगा 4b इज इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। सो वी गेट यहाँ पर मिलेगा 8 इज इक्वल टू -4b। सो व्हाट इज b, b इज -2, तो b -2 कहाँ पर है, यहाँ पर एंड यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो इन दोनों में से मुझे देखना है कि अब कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इसमें रखेंगे ये वाला y0 इज इक्वल टू 0, ये क्या मिलेगा, ये तो 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली c
एंड ई पावर 0 इज़ 1, दिस इज डी, ये किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू माइनस डी, सी इज इक्वल टू माइनस डी, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, अगेन यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, नाउ चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बोला है पार्शियल जी पे पार्शियल एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एंड यहाँ पर क्या होता है, एंड एक्स इज इक्वल टू जीटा पे क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू जीटा पे होता है ये जो पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स होता है when x is greater, this is a property of Green's function, and minus partial g upon partial x when x is less than zeta, ये किसके बराबर होता है, this is minus 1 upon p of zeta। now ये जो p of zeta होता है ये क्या होता है, simply what is p of zeta, p of zeta is coefficient of y double dash। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे y डबल डैश का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली जब हम इसको डेरिवेटिव कर लेंगे तो e पावर माइनस 5x क्या मिलेगा, इसका कोफिशिएंट मिलेगा y डबल डैश। नाउ पार्शियल जी पे पार्शियल x, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फॉर व्हाट, x ग्रेटर देन जीटा, x ग्रेटर देन जीटा यहाँ पर है, ग्रेटर इक्वल टू जीटा, तो दैट मीन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड फिर क्या रखना है, फिर x के बदले क्या रखना है, जीटा रखना है या जीटा के बदले x रखना है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, दिस इज 3e पावर 3x एंड प्लस दिस इज सिंपली 2b e पावर 2x एंड मल्टीप्लाइड बाय c e पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जीटा आएगा, ये तो ऐसे ही रखना है ना, बट जीटा के बदले क्या है यहाँ पर x है, तो यहाँ पर मिलेगा x एंड प्लस d e पावर 3, जीटा के बदले x मिलेगा, एट x इज इक्वल टू जीटा, दिस सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ फिर माइनस पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स फॉर व्हेन x इज लेस देन जीटा, x इज लेस देन जीटा कहाँ पर है, x इज लेस देन जीटा यहाँ पर है, दैट मीन्स यहाँ पर रखना है। सो ये क्या मिलेगा, माइनस दिस इज सिंपली e पावर ना, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसको ऐसे ही रखना है। जब हम इसको ऐसे ही रखेंगे क्या मिलेगा, e पावर 3 जीटा, बट जीटा के बदले क्या है यहाँ पर x है, एंड प्लस दिस इज b e पावर 2x एंड इसको डिफरेंशिएट करना है, दिस इज सिंपली 2c e पावर 2x एंड प्लस 3d e पावर 3x, ये मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन p ऑफ जीटा, this is minus 1 upon p of zeta is coefficient of y double dash, this is simply e power minus 5x। so अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा, this is simply अगर हम कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली e पावर 5x एंड माइनस e पावर 5x मिलेगा ना। e पावर 5x का हम कोफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे, दिस इज e पावर 3x एंड e पावर 2x, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो e पावर 5x मिलेगा। सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो 3c मिलेगा, फिर क्या मिलेगा स्कोर इसके साथ, दैट इज 2bd मिलेगा, 2bd मिलेगा, माइनस स्कोर इसके साथ कोफिशिएंट में कंपेयर करता हूँ ना e पावर 5x का, दिस इज सिंपली 2c एंड फिर क्या मिलेगा माइनस ये और ये, दिस इज 3bd, ये किसके बराबर मिलेगा, इसका कोफिशिएंट कंपेयर हम कर लेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। सो दैट मीन इज ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 3c माइनस दिस इज c माइनस bd इज इक्वल टू -1। तो c का वैल्यू क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू bd -1। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, तो c का वैल्यू -1 है इज इक्वल टू bd, b का वैल्यू है -2 एंड d का वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड -1, क्या ये सेटिस्फाई होगा, -1 इज इक्वल टू -2 -1, दिस इज इक्वल टू -3, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन। तो दैट मीन्स ट्रू कौन सा होगा फिर, सेकंड। क्या ये सेटिस्फाई होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर c का वैल्यू क्या है 1 है, तो c का वैल्यू 1 रखेंगे इज इक्वल टू फिर क्या है bd -1, तो b का वैल्यू क्या है -2 है, d का वैल्यू क्या है -1 है एंड फिर -1, that means this 1 is equal to 2 minus 1, that is equal to 1, 1 is equal to 1, that means this is satisfied, so this is a true option. Now next, this is about ये एक नेम ऑन प्रॉब्लम है, ओके। नाउ
यहाँ पर जो b of 0 2, this is simply an open ball of radius is 2 here and centered at the origin, and ये define किया गया है इसने, and this is simply x square plus y square is less than 4. What is this? This is simply b of 0 2 open ball. Now ये जो पार्शल b है ये डिनोट करता है यहाँ पर बाउंड्री, एंड ये क्या है बाउंड्री ऑफ दिस, अगर ये इसका बाउंड्री है दैट मीन्स ये तो एक सर्कल मिलेगा, ये क्या मिलेगा एक सर्कल मिलेगा वायर, जहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्योंकि ये क्या ये डिनोट करता है बाउंड्री, तो दैट मीन्स दिस इज सिंपली ए सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ अगर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, फिर v ऑफ एक्स वाई इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू दिस, एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये जो अल्फा एंड बीटा है ये क्या है कॉन्स्टेंट्स है विद अल्फा बीटा, यहाँ पर x0 एंड y0 है यहाँ पर, एंड k जो है ये यहाँ पर मिलेगा. ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड k बिलोंग्स टू r. ओके, नाउ S1 क्या बोल रहा है, अगर बीटा इज इक्वल टू 0 है देन देयर एग्जिस्ट इज a point x0 y0 belongs to this open ball such that ये इसके बराबर मिलेगा. ओके, नाउ लेते हैं लेट बीटा इज इक्वल टू 0, इसमें क्या लेना है बीटा इज इक्वल टू 0. जब मैंने बीटा 0 ले लिया है ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपल, दिस इज अल्फा u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बीटा 0 है यहाँ पर, तो ये तो 0 मिलेगा, वो गेट सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई की ऑन व्हाट ऑन पार्शल बी, क्योंकि पार्शल बी जो है ये क्या है अभी मैंने बोला है दिस इज अ सर्कल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा दिस इज अल्फा u ऑफ एक्स वाई किसके बराबर मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 4k बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑन पार्शल बीटा, चूंकि ये बाउंड्री आ रहा है दैट इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 4. नाउ ये जो u ऑफ एक्स वाई है ये क्या मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 4k अपॉन अल्फा ऑन द बाउंड्री ऑन व्हाट ऑन पार्शल बी. दैट मीन्स ये जो u ऑफ एक्स वाई है ये क्या है, ये तो हार्मोनिक है इन द इंटीरियर, चूंकि यहाँ पर पार्शल ये जो डेल्टा u है ये किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर है इन ओपन बॉल दिस. ओके, दैट मीन्स u इज हार्मोनिक. सो ये जो यहाँ पर बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल इंप्लाई क्या करेगा, ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है u ऑफ एक्स वाई का इन द क्लोज्ड बॉल b ऑफ 0 2, ये कहाँ आकर करेगा बाउंड्री पे करेगा आकर. ओके, वाई बिकॉज बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल, देयरफॉर ये जो u ऑफ एक्स वाई है इनसाइड ये क्या बोल रहा है कि चूंकि ऑन बाउंड्री पे क्या हो जाएगा ये मिलेगा इज अ क्लोज्ड बॉल. नाउ अगर हम बात कर लेंगे इनसाइड, तो इनसाइड क्या मिलेगा ये कॉन्स्टेंट मिलेगा ऑब्वियसली, और इनसाइड क्या मिलेगा ये u ऑफ एक्स वाई. अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा b ऑफ 0 2 ये क्या मिलेगा एक कॉन्स्टेंट मिलेगा जो कि मिल रहा है यहाँ पर 1 प्लस 4k अपॉन अल्फा सिंपली, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 4k अपॉन अल्फा. सो दैट मीन्स ये जो u ऑफ x0 एंड y0 है ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1 प्लस 4k अपॉन अल्फा. ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट. If beta is equal to 0 belongs to b of 0 2 such that this, so that means S1 is true statement. Okay, now what about S2? S2 क्या बोलता है, अगर हमने अल्फा 0 ले लिया है तो लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0, इसमें अगर मैंने अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लिया है ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली बीटा पार्शल u बाय पार्शल v. ओके, एंड एक्स वाई this is equal to simply 1 plus x square plus y square
एंड यहाँ पर k मिलेगा ऑन व्हाट, ऑन पार्शियल b। ओके ना, चूंकि अभी मैंने बोला है पार्शियल b, ऑन पार्शियल b पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के बराबर मिलेगा। सो सिंपली ये क्या मिलेगा, बीटा पार्शियल u बाई पार्शियल v, पार्शियल u बाई पार्शियल v, सॉरी एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4k ऑन व्हाट, ऑन पार्शियल बीटा। नाउ हम जानते हैं नेमन प्रॉब्लम में क्या होता है, ये एक नेमन प्रॉब्लम है, वी नो दैट दिस इज ए नेमन प्रॉब्लम। सो हम जानते हैं व्हेन अल्फा इन नेमन प्रॉब्लम, इन नेमन प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर अल्फा 0 है तो ये जो इंटीग्रल होता है नॉर्मल डेरिवेटिव का ओवर द बाउंड्री, ये 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपली ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल b ऑन बाउंड्री, ये जो पार्शियल u बाई पार्शियल v होता है ds, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज सिंपली अ नॉर्मल डेरिवेटिव, ओके, ओवर व्हाट, ओवर द बाउंड्री। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूमैन प्रॉब्लम। नाउ दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, अगर बीटा 0 के बराबर नहीं है तो उस टाइम क्या मिलेगा, वी मस्ट हैव, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल b है ये क्या मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 4k ds, दिस इज इक्वल टू 0। जब बीटा 0 के बराबर नहीं मिलेगा तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 प्लस 4k ds। सो दैट मीन्स नाउ व्हाट इज द, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, अगर हम इसका लेंथ निकालेंगे ये क्या मिलेगा, ये तो एक सर्कल, एक सर्कमफरेंस मिलेगा। ये जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का जो लेंथ है पार्शियल b, ऑब्वियसली वो क्या मिलेगा, 2 पाई r। सो दिस इज सिंपली 2 पाई, यहाँ पर इसका रेडियस क्या है, 2 है, सो दिस इज सिंपली 4 पाई। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4 पाई integration ds, this is 4 pi and 1 plus 4k, this is equal to 0, so implies 1 plus 4k is equal to 0, implies that k is equal to minus 1 by 4. So that means this statement is also true statement. If alpha is equal to 0, this is, that means both s1 and s2 are true. That is very interesting question. Now next अगर हम देखेंगे, this is extremizer of the problem, minimum of this and this is an, ये एक आइसोपेरिमेट्रल प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे लिखते हैं, f इज इक्वल टू, चूंकि एक कंडीशन यहाँ पर है, फिर क्या है, सब्जेक्ट टू दिस, दैट मीन्स दिस आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम, दैट मीन्स f इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिखेंगे, f इज इक्वल टू से 1/2 एंड y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस क्या मिलेगा, लैम्डा xy, ये मिलेगा f। नाउ हम जानते हैं यहाँ पर व्हाट इज पार्शियल f बाई पार्शियल y माइनस d बाई डी एक्स बाई यूलर इक्वेशन, पार्शियल f बाई पार्शियल y डैश इज इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज y प्लस दिस इज लैम्डा x एंड माइनस d बाई डी एक्स, ये तो y डैश मिलेगा, दिस इज 0, सो दैट मीन्स y प्लस लैम्डा x माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू 0, सो y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। नाउ अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा c1 ई पावर एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस एक्स। अगर हम c1 c2 यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑप्शंस में, तो सब में c1 c2 इसके बराबर है, e अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1, ई अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन c1 c2 इक्वल आ रहा है हर एक ऑप्शन में। अगर हम निकालेंगे भी बाई कंडीशन से हम इसको निकाल भी सकते हैं, एक कंडीशन यहाँ पर ये है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये है, तो c1 c2 का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इसी के बराबर आएगा। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज सिंपली y इज इक्वल टू दिस एंड प्लस यहाँ माइनस क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे चूंकि यहाँ पर मिलेगा सिंपली लैम्डा एक्स, अगर हम पी आई इसका निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 1, सो इसको मैं लिख सकता हूँ एज दिस इज, ये क्या मिलेगा माइनस लैम्डा, अगर मैंने इसको ऊपर किया है ये मिलेगा 1 माइनस डी स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन निकाला है एंड ऊपर माइनस 1, दिस इज एक्स, so this is simply minus lambda and this is 1 plus d square plus so on up to x। तो यहाँ पर तो एक ही टर्म आएगा बिकॉज दो बार डेरिवेटिव कर लेंगे तो 0 मिलेगा, दिस इज माइनस लैम्डा एक्स।
सो पी आई इज सिंपली माइनस लैम्डा एक्स। नाउ अगर हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, अभी क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन से देखेंगे यहाँ पर C1 C2 बराबर आ रहा है। ना व्हाट अबाउट दिस लैम्डा एक्स, यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट लैम्डा है, ये तो कुछ इस तरह आ रहा है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, साइन 2πx ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स ओनली द दिस ऑप्शन ट्रू। बट यहाँ पर तो फिर लैम्डा 0 मिलेगा। क्या लैम्डा 0 मिलेगा? हम देखेंगे क्या लैम्डा 0 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, ये क्या बोल रहा है कि एक्स वाई डी एक्स किसके बराबर मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। सो अगर हम इसमें रखेंगे तो वी गेट ऑब्वियसली यहाँ पर तो फिर लैम्डा 0 के बराबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ये क्या मिलेगा? दिस इज C1 e पावर एक्स इंटू एक्स प्लस दिस इज C2, चूँकि इस एक्स से मल्टीप्लाई करना है वाई को, दिस इज एक्स ई पावर माइनस एक्स एंड माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन जब कर लेंगे -1 to 1, सो ये क्या मिलेगा? दिस इज C1, इसको जब इंटीग्रेशन कर लेंगे दिस इज एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स -1 to 1। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ना, अगर x एंड ई पावर x करना है, इसको डेरिवेटिव करना है एक बार, फिर 2 बार 0 आएगा, इसको एक डेरिवेटिव करना है, जब तक कि 0 ना आएगा तब तक इसको डेरिवेटिव करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव साइन रखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन रखना है। यही मैंने लिखा है एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, दिस इज अ ट्रिक फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ई पावर एक्स। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पर क्या मिलेगा? दिस इज C2, दिस इज माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स एंड माइनस क्या मिलेगा? ई पावर माइनस एक्स, दिस इज -1 to 1 मिलेगा। सो दिस इज सिंपली C1 e माइनस ई एंड यहाँ पर मिलेगा माइनस ई माइनस 1 एंड माइनस ई माइनस 1, ओके, एंड प्लस C2, दिस इज अगेन माइनस ई माइनस 1 एंड माइनस ई माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस ई माइनस ई। तो ये तो 0 मिलेगा, ई माइनस ई ये भी 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा C1 2e माइनस 1 एंड माइनस C2 2e माइनस 1 एंड माइनस 2 लैम्डा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, चूँकि इंटीग्रेशन 0 है। बट हम जानते हैं यहाँ पर हर एक ऑप्शन में भी एंड यहाँ पर से अगर निकालेंगे भी C1 C2 बराबर आएगा। सो अगर हम यहाँ पर रखेंगे C1 यहाँ पर C2 C1 C2 के बराबर अगर रखेंगे तो ये तो और कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट ऑब्वियसली लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो थर्ड है ये क्या है? ट्रू ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि इनफिमम इसका निकालना है। सो हम जानते हैं जब भी डेरिवेटिव आता है ना इसमें यूलर इक्वेशन, जब भी ओनली डेरिवेटिव आएगा तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चूँकि यहाँ पर फंक्शन है t का। सो दिस इज y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, दिस इज अ सोल्यूशन, सिंपल सी बात है। नाउ चूँकि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, चूँकि यहाँ पर ये दिया गया है। सो यहाँ पर y ऑफ b किसके बराबर है? b माइनस 5। सो ये जो b माइनस 5 है ये क्या होता है? दिस इज सिंपली y2 एंड b जो होता है ये क्या होता है? x2 एंड a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर? दिस इज सिंपली y1 एंड व्हाट इज a इज x1 y1 एंड x2 y2। चूँकि हमें स्लोप निकालना है, m का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज m? दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। सो व्हाट इज m हियर? m is simply b minus 5 and minus a square upon b minus 5, b minus a इंटू क्या मिलेगा? t मिलेगा एंड प्लस क्या मिलेगा? c मिलेगा, दिस इज y। नाउ हमें क्या निकालना है? इनफिमम निकालना है। सो दैट मीन्स इसको हम क्या कर लेंगे? डेरिवेटिव निकाल लेंगे। मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? इसका डेरिवेटिव। दैट मीन्स दिस इज सिंपली b minus 5 with respect to t, so this is minus a square upon b minus a, okay। now यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है जब भी आएगा y डैश, तो इनफिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें ये वापस पुट करते हैं तो वो गेट है हमें इनफिमम मिलेगा। सो दिस इज सिंपली इंटीग्रेट फ्रॉम a to b, यहाँ पर क्या मिलेगा? ये 1 प्लस y डैश स्क्वायर, तो y डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इज b माइनस 5 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में भी क्या है? b माइनस ए का होल स्क्वायर एंड इसका रूट है एंड dt, ओके। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा? दिस इज सिंपली b माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस b माइनस 5
माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड यहाँ से मिलेगा बी माइनस ए। ओके, अगर हमने इसको रूट से बाहर निकाला है तो बी माइनस ए मिलेगा, सिंपली लेट इट बी आई। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी टी, ये भी क्या मिलेगा बी माइनस ए। जब हम इसको अपर इंटीग्रेशन कर लेंगे डी टी, ये क्या मिलेगा बी माइनस ए। सो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा लेट इट बी, हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर क्या मिलेगा, दिस इज बी माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज बी माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ लेट इट बी से एफ। नाउ हमें क्या निकालना है, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल ए 0 पुट कर लेंगे एंड पार्शियल एफ बाई पार्शियल बी भी पुट कर लेंगे 0। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट सिंपली 2b, जब हम इसको निकालेंगे दिस इज सिंपली 2b माइनस ए एंड प्लस 2 दिस इज b माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस 2a किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। जब हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे आफ्टर सॉल्विंग इट, सो 2b माइनस ए दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी गेट, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड अगेन पहले हम यहाँ पर पार्शियल एफ बाई पार्शियल बी भी अगर निकालेंगे, ये क्या मिलेगा, दिस इज 2b माइनस ए। ओके, दिस इज सिंपली माइनस 2 एंड यहाँ पर मिलेगा b माइनस, ये क्या मिलेगा, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, सो दिस इज माइनस 2b माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर। ओके, एंड अगर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, ये क्या मिलेगा, दिस इज 2b माइनस ए, दिस इज सिंपली 4a एंड b माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर। नाउ अगर हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, दिस ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू, ये तो 2a मिलेगा, दैट मीन्स ए का वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, दैट मीन्स ए का जो वैल्यू है वो मिलेगा 1/2। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 4a एंड यहाँ पर जो है ये माइनस मिलेगा, सो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर। नाउ अगर हम यहाँ पर सिमिलरली b का वैल्यू निकालेंगे, सो b a यहाँ पर इसमें हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, इसमें या इसमें कर लेंगे पुट, तो यहाँ से जो b का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 23/8। ओके, नाउ सिंपली क्या करना है, अब ये जो है ये इसमें रखना है, ये क्या मिलेगा i इज इक्वल टू, दिस इज सिंपली 23/8 and minus 1/2 whole square and plus this is 23, ये किस में रखना है, i में रखना है 23, b का वैल्यू 23/8, this is minus 5 and minus a square, this is 1/4 and again यहाँ पर क्या है, इसका होल स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट भी है, so this is simply this is 19/8 होल स्क्वायर एंड प्लस ये मिलेगा माइनस 19/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज सिंपली 19/8 √2। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये क्या मिलेगा, दिस इज ए ट्रू ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे यहाँ पर वो रहा है कि x जो है ये डिनोट करता है टोपोलॉजिकल स्पेस R, क्योंकि यहाँ पर है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, दैट इज अ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी होता है ये, एंड y डिनोट करता है टोपोलॉजिकल स्पेस और r विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नाउ x क्रॉस 0 1 क्या ये क्लोज्ड है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी है एंड प्रोडक्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, ओपन सेट इन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन x क्रॉस y आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट्स इन x एंड ओपन सेट इन y। नाउ ये बोल रहा है कि सिंपली क्लोज्ड है क्या या नहीं है, क्लोज्ड कब होता है, जब इसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ चूंकि x जो है, x के पास क्या है, x तो एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, दैट मीन्स x हैज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, दैट मीन्स ये जो x में जो एवरी नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा
every, this is the property of this, every non-empty open set in X, वो क्या हो जाएगा, वो तो डेनस हो जाएगा, ओके, बिकॉज इसका जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट आएगा. नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर R, ये जो ये जो 0 1 है एंड x क्रॉस 0 1, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, x ऑब्वियसली ये जो x है ये क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा ना. ये बोल रहा है कि इसका कंप्लीमेंट x क्रॉस 0 1 इज क्लोजर, तो हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे. इसका कंप्लीमेंट क्या मिलेगा, इसका जो कंप्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक x क्रॉस y में है, इसका कंप्लीमेंट मिलेगा x क्रॉस सिंपली r माइनस 0 1. दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ दिस. नाउ r माइनस 0 1, दिस इज सिंपली व्हाट, अगर हम r माइनस 0 1 निकालेंगे ये क्या मिलेगा, 0 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से क्या करना है 0 1, दैट मीन्स दिस इज माइनस इन्फिनिटी 0 एंड यूनियन, ये क्या मिलेगा 1 टू इन्फिनिटी मिलेगा. सो दिस इज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, इज अगेन अ ओपन सेट. तो ये क्या है, इसका कंप्लीमेंट है एंड x भी x है, ये जो x है ये जो x है ये क्या है, ये तो ओपन है. क्यों ओपन है, बिकॉज इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी. ओके, सो दैट मीन्स ये जो r माइनस दिस क्लोज इंटरवल 0 1 है ये भी क्या है, ओपन है, बिकॉज इसका कंप्लीमेंट ओपन आ रहा है. सो दैट मीन्स अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है, सो इसका मतलब क्या हुआ है, दिस इज इंडीड ए क्लोज्ड, बिकॉज डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है तो ये क्या मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा. दैट मीन्स x क्रॉस 0 1 इज क्लोज्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये क्या बोल रहा है कि x क्रॉस 0 1 इज कंपैक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी. तो हम जानते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो इसमें जो कंपैक्टनेस होता है, क्योंकि x विद ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कंपैक्ट, x विद ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कंपैक्ट, बिकॉज वाई, बिकॉज एनी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर. सो चूंकि यहाँ पर जो ये जो 0 1 है ये क्या है, ये तो कंपैक्ट है. सो बाय ये जो हम जानते हैं एक थ्योरम है यहाँ पर टोपोलॉजी में, दिस इज कॉल्ड टाइकोनॉफस थ्योरम. ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ कंपैक्ट स्पेसेस is compact in what, in the product topology. okay, so that is why ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, क्योंकि ये भी कंपैक्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपैक्ट स्पेस एंड x इज अगेन, ये x में क्या है, ये तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, इज कंपैक्ट, x भी कंपैक्ट है बिकॉज ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में है. तो दैट मीन्स ये भी क्या है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट बोल रहा है कि x इज कंपैक्ट. नाउ क्या x कंपैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली. वाई, अभी मैंने बोला है x इज इंडीड कंपैक्ट. वाई, बिकॉज इट इज इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, बिकॉज एनी ओपन कवर ऑफ x must have a finite subcover. The whole space is covered by one open set with a finite complement. So that means ये भी क्या मिलेगा, कंपैक्ट मिलेगा. नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ, x क्रॉस y इज कंपैक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी. तो x क्रॉस y, ये y की बात कर रहा है यहाँ पर. अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट अबाउट y, तो x तो कंपैक्ट है इन कोफाइनाइट टोपोलॉजी, बट y जो है, y यहाँ पर क्या मिलेगा, y कंपैक्ट नहीं है. क्यों कंपैक्ट नहीं है, क्योंकि y कहाँ पर है, y तो R में है, y बीइंग ऑफ ऑल R विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, तो ये तो कंपैक्ट नहीं हो जाएगा. दैट मीन्स ये कंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि R इज नॉट कंपैक्ट इन द यूक्लिडियन टोपोलॉजी. इट इज नॉट बाउंडेड एंड क्लोज्ड, क्योंकि ये बाउंडेड भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए. सो चूंकि ये जो y है ये कहाँ पर आ रहा है, ये जो y है बीइंग ऑल R, ओके, विद द यूक्लिडियन टोपोलॉजी. सो दैट इज वाई ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर x क्रॉस y टू बी कंपैक्ट अगर है, तो यहाँ पर बोथ x एंड y क्या होना चाहिए, कंपैक्ट होना चाहिए. बट x तो है बट y नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर,
f of x, f from 0 1 to 1 to infinity, okay, and defined by f of x is equal to, यहाँ पर जो f of x है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है 1/1 माइनस एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, दिस इज 0 1, ओके। क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या f ऑफ x यू सी हो जाएगा, तो कंटिन्यूस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 0 and 1 ओपन है। क्या ये यू सी हो जाएगा, यू सी कब हम देखते हैं, हम सिंपली जब भी ओपन इंटरवल होता है तो हम देखते हैं इसके जो एंड पॉइंट्स पे क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये जो f ऑफ x है ये तो एग्जिस्ट हो जाएगा फाइनाइटली, नो प्रॉब्लम। नाउ अगर हमने यहाँ पर ये देखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये तो 0 मिलेगा यहाँ पर, 1/0 तो इन्फिनिटी मिलेगा, तो नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली at x is equal to 1. That means this is not UC. Okay, this is true statement then. The sequence p and x converges to f of x. अगर हम यहाँ पर देखेंगे p and x, what is p and x here? This is simply 1 plus x square plus so on up to x power n, ये किसके बराबर में होता है, this is 1 minus simply x power n plus 1 upon 1 minus x, okay. नाउ अगर हमने यहाँ पर ले लिया है कि x बिलोंग्स टू 0 1 है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 1, तो अगर हम इस वाले टर्म को देखेंगे x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 इन व्हाट, इन, चूंकि यहाँ पर बात कर रहा है पॉइंट वाइज 0 1, क्या ये पॉइंट वाइज 0 1 में हो जाएगा तो f ऑफ x, तो अगर हमने 0 पे यहाँ पर रखा है तो 0 मिलेगा, और अगर मैंने यहाँ पर 1/1 से कम रखना है ना, लेस देन 1, तो उस टाइम भी क्या मिलेगा, ये जब मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया है एंड x कहाँ बिलोंग करेगा 0 और 1 में, दैट मीन्स ये जो x पावर n प्लस 1 है ये कहाँ टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा ओबियसली, बिकॉज यहाँ पर x लेस देन 1 है, ओके। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, ये जो p एन x है ये क्या मिलेगा एट व्हाट, फॉर x बिलोंग्स टू 0 1, ये क्या मिलेगा, दिस इज 1/1 माइनस एक्स एंड दिस इज f ऑफ x, सो फॉर एवरी x ये क्या मिलेगा, ये तो पॉइंट वाइज करेगा, दैट मीन्स ये जो p एन x है ये कन्वर्ज करेगा f ऑफ x को पॉइंट वाइज, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्या यूनिफॉर्मली हो जाएगा, नाउ यूनिफॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम सिंपली mn टेस्ट देखते हैं, mn ये क्या होता है फॉर x बिलोंग्स टू 0, इसका सुप्रीमम, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली p एन x माइनस f ऑफ x, ये 0 पे टेंड करना चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, लेट मी चेक, 1 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड माइनस दिस इज 1/1 माइनस एक्स, इसका मॉड अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली x पावर n प्लस 1, क्योंकि मॉडलेस है, एंड डिवाइड में क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, दिस इज सिंपली mn, ओके, एंड x कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 1 में, 1 ओपन है यहाँ पर। नाउ अगर हमने यहाँ पर ये ले लिया है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इसमें करेगा या इसमें करेगा, ये हमें अब देखना है, वी हैव टू चेक नाउ। अगर हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर एग्जांपल ये 0 and 1, इसमें क्या ये इसमें ये 0 पे टेंड करना चाहिए, फिर इस इंटरवल में क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू, अगर मैंने x टेंड्स टू 1 ले लिया है, x टेंड्स टू 1, व्हाट इज mn, mn क्या मिलेगा, x टेंड्स टू 1 ये तो इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये फाइनाइट मिलेगा, बट 1 माइनस एक्स ये क्या मिलेगा, ये तो इन्फिनिटी मिलेगा एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 1 पे तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड नहीं हो जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर ले लिया है 0 and c, क्योंकि c क्या है, c इज लेस देन 1, तो ओब्वियसली अगर आप कोई भी c ले लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है c इज इक्वल टू 1/2, तो उस टाइम क्या मिलेगा, ये दिस इज 1/2 पावर n प्लस 1 अपॉन क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या ये क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये तो 0 मिलेगा। तो कोई भी आप c ले लीजिए विच इज c इज ग्रेटर देन 1 एंड c इज ग्रेटर देन 0, आप कोई भी c ले लीजिए यहाँ पर, ये क्या मिलेगा, ये टेंड करेगा 0 पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्टेड हो जाएगा फॉर क्लोज इंटरवल 0 c, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर
t power 4 minus दिस इज अ सेटिस्फाई इट इज डिस्टिंक्ट, यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, 4 डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट इज अ नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं ये जो इसका जो डेफिनेशन होता है ना एगन वैल्यू का, दिस इज सिंपली टी ऑफ एक्स, अगर लैम्डा एक्स है तो लैम्डा क्या होता है, इसका एगन वैल्यू होता है। ओके ये बोल रहा है कि एंड एक्स क्या होता है, वेक्टर होता है। सिंपली दिस इज टी ऑफ v1 इज इक्वल टू 2 ऑफ v1। क्या ये 2 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है? अगर हो रहा है दैट मीन्स ये इसका एगन वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स उस टाइम एग्जिस्ट एक नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 2 रखा है, इसमें ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली, चूँकि ये तो पहले इसको सेटिस्फाई करेगा ना। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है लीनियर ऑपरेटर टी। सो चूंकि टी हैज़ 4 डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज, लेट इट बी से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। सो फॉर ईच एगन वैल्यू लैम्डा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लैम्डा पावर 4 माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा। ये तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, क्योंकि लैम्डा इसका एगन वैल्यू है। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके नाउ अगर हमने लैम्डा इज इक्वल टू 2 ले लिया है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? So this is simply 2 power 4 minus 15, okay, this is 2 square and plus this is 10, 2 plus 24, क्या ये 0 के बराबर मिलेगा? This is 16 minus ये कितना मिलेगा? This is 15 multiplied by 4 कितना हुआ? This is 60 and plus this is 20 and this is 24। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा? This is obviously this is minus 60 and plus 24 plus 6 that is 30 and this is 50 and this is 60, that means this is equal to 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, that means 2 इसका एगन वैल्यू मिलेगा, that means there exists is a non-zero vector, that means this statement is true। now similarly यहाँ पर बोल रहा है कि 1 के बारे में, क्या 1 सेटिस्फाई हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट इज यहाँ पर क्या है, टी ऑफ v2 इज इक्वल टू 1 v2, क्या 1 इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा? 1 पावर 4 माइनस 15, this is 1 square and plus this is 10 1 and this is plus 24, this is simply 1 minus 15 plus 10 and plus 24। तो ये तो 20 के बराबर मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये 1 जो है ये तो इसका एगन वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन। नाउ फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये दो वेक्टर्स ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2v है एंड क्या है 3t ऑफ v। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यही चूंकि टी ऑफ v अगर मैं लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू से दिस इज 2v ले सकता हूँ, बिकॉज 2 इसका एगन वैल्यू है, तो टी ऑफ v में ले सकता हूँ 2 ऑफ v। सो हमें क्या मिलेगा, ये जो सेट मिलेगा ये क्या मिलेगा, दिस इज 2v एंड दिस इज 2v। सो दिस इज सिंपली 2v एंड 6v। क्योंकि ये जो 2v एंड 6v है, क्या ये एलाई है? नहीं है एलाई। क्यों नहीं है? बिकॉज ये तो एक क्या है, ये तो स्केलर मल्टीपल है ऑफ अदर। क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको, ये जो 3, ये जो 2v एंड हम लिख सकते हैं ना इसको 3 ऑफ 2v, 6 को हम लिख सकते हैं 3 ऑफ 2। ये तो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज 6v1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 ऑफ v1। हैनस ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा। ये क्या बोल रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दिस इज अगेन ए फॉलोज ऑप्शन। नाउ क्या टी 1 है? क्योंकि 1 के लिए क्या होता है, यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल 2 तो इसका एगन वैल्यू 1 है। नाउ अनदर बाकी जो है, बाकी सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो क्या मिलेगा, 1 तो नहीं होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए तभी 1 मिलेगा। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है दैट मीन्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर दैट मीन्स इसका जो एगन वैल्यू है वो सारे के सारे नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी एगन वैल्यू 0 मिलेगा तो डिटरमिनेंट 0, दैट मीन्स उस टाइम ये 1 नहीं हो जाएगा। क्या इसका 0 कोई भी एगन वैल्यू है? सेटिस्फाई करके देखो। अगर हम इसमें देखेंगे 0, ये क्या मिलेगा, दिस इज 0 पावर 4, दिस इज माइनस अगेन यहाँ पर 0 मिलेगा, दिस इज प्लस 0 एंड प्लस 24 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 इसका एगन वैल्यू नहीं है, तो सारे के सारे एगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज अगेन दिस इज ए 1 फंक्शन। ओके नाउ
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर सम एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप है S5, तो हम जानते हैं व्हाट इज P ऑफ 5, पार्टीशन से हम इसको निकालते हैं, दिस इज 7। तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन कौन सा मिलेगा, एक तो 5 हम लिख सकते हैं, 5 को हम पार्टीशन अगर कर लेंगे 5 लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, ओके, 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 1 + 1 लिख सकते हैं, 2 + 2 + 1 लिख सकते हैं, 2 + 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, एंड 1 + 1 + 1 + 1। ये किस टाइप का होगा, ये होगा 1 2 3 4 5, एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 इस टाइप का होगा, एंड 3 1 1 ये किस टाइप का होगा, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, एंड दिस इज आइडेंटिटी। नाउ ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं, सिंपली एलसीएम ऑफ 5 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। Now LCM of 4 and 1, this is a 4, so there is an element of order 4, this is a true. Now LCM of 3 and 2, that is 6, so 6 ऑर्डर का भी एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर। Now उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, LCM यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, LCM of 3 1 1 क्या मिलेगा 3 मिलेगा, it has an element of order 3, that means all the options are true. So thank you for watching. If you found this helpful, do not forget to like, share and subscribe my channel Mathematics Success Hub. And for more videos, keep practicing and good luck with your studies. Thank you.